Hello students, today we are going to see our new topic, that is balance unbalanced forces. In our last period we have studied what is force and which are the effects a force can apply on any object. We have studied that by applying force we can change the direction of an object. By applying force we can increase the speed of the object. By applying force we can change the shape and size of the object. Those are the things we have studied in our last period. But today we are going to see what is meant by balanced force and what is meant by unbalanced force. That is what we are going to study in this period. So first of all, what is meant by balanced force? Suppose that this is any object. From one side I have applied a force of 10 Newton on it, and from another side I have applied the same 10 Newton force on it. So in this case, the 10 Newton force from the left side and the 10 Newton force from the right side will get cancelled each other because the value of both the forces is same and direction is opposite. So we can say that this is a balanced force. Okay. Again, on the same object, if I apply a force, a pulling force, then in this case also, the right side I am applying the force of 10 Newton, in the left side I am applying the force of 10 Newton. So in this case also, both the forces will cancel each other and the object will remain at the rest position. Means this is also a balanced force. I hope you have understood the concept of balanced force. The balanced force means a force which is applied on both the sides of same quantity. Then what is meant by unbalanced force? If on the same object, if I applies a 15 Newton force on the right hand side and only 10 Newton force on the right hand side, then in this case the force is not balanced. In this case the object will move in the direction of 15 Newton force. I hope you understood. Means in this case the force is not balanced force, it is an unbalanced force. Okay. So in this case object will move in the right hand direction. Okay. It is also depend on the weight and mass of the object also. Means if the object is not heavier, then in that case it will move. But if the object is very heavy, then balance unbalanced force will not can create any difference on it, because in that case the force will be much lesser as compared to the mass of the object. I hope you have understood the concept of balance unbalanced force. So while driving a car on a road, while driving a car or bus, whatever it is, while driving it on a road, we have studied that in our last last standard, in 8th standard, you have studied that there is a force of friction. The friction force is always opposing to that of the motion. And that type of force is always present in any case, and that is why means I can say that there is a unbalanced force in this case also. The vehicle will create a force which is giving the motion to the object, and the frictional force will create an opposition to that the motion, and that means this case also unbalanced force is there. But due to the force of bus is greater as compared to friction force, we can able to move the object in whatever direction we want to move it. Okay, means unbalanced force is must whenever you want to move that object in any of the direction. Means unbalanced force is very important so that we can move any object in particular direction which we require. Okay, I hope you have understood the concept of balanced force and unbalanced force. So balanced force means a force which is equal in both sides. And unbalanced force means the quantity of force which is moving the object in one of the direction because of unbalancing of the force. Then here there was one scientist named as Galileo who observed the motion of objects on inclined plane. Inclined plane you already knows, the plane like this which is known as inclined plane. He observed some of the inclined plane like this. Here he put one marble there, and in that case the marble moves in
forward direction, or we can say that it is sliding on the surface because of its inclination. And deduce that objects move with a constant speed with no force acts on them. We already know that if we put a marble there, the marble will, we can say that will move with a constant speed on that surface without applying any force. We don't need force at that case, because gravitational force is there who will pull that object towards itself. So that is what Galileo have studied, and he deduced that objects move with a constant speed with no force acts on them. मीन्स इस केस में ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई ना होते हुए भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो यही चीज जो है गैलीलियो ने ऑब्जर्व की। उसके अलावा उन्होंने काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताई है। जैसे आप अगर इस तरह से आप दो इंक्लाइंड प्लेन लेते हो, आई हैव टू इंक्लाइंड प्लेन इन दिस केस एंड वन ऑफ द मार्बल इज हियर। उसने क्या किया, इस मार्बल को यहाँ से छोड़ दिया, तो मार्बल क्या होगा, यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाएगा, सही है, और यहाँ से फिर वो क्या करेगा, वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, है ना, ठीक है। सपोज इस केस में जो फ्रिक्शन है वो हम बिल्कुल निग्लिजिबल पकड़ लें, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, ऐसा अगर मैं समझता हूँ, कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्बल ने इस पोजीशन से स्टार्ट किया है तो ये यहाँ पर भी उसी पोजीशन तक ऊपर आएगा, मतलब यहाँ से नीचे जाने के बाद सेम उतनी ही हाइट तक ऊपर आएगा, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, है ना। बट ये केस हमेशा पॉसिबल नहीं होती। आपने अगर इसको करके देखा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ तो अच्छा स्पीड से आएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, बट जितनी ऊपर से वो नीचे आया था उतनी ही ऊपर तक नहीं जा पाएगा, कहीं ना कहीं बीच में से फिर से वो वापस आएगा, इस तरह से वो करते रहेगा मोशन, और कुछ समय बाद आप देखोगे कि वो एक जगह पे रुक जाएगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑलवेज विल बी देयर। अगर फ्रिक्शन वहां पे है तो हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट है वो, जो आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट फोर्स उसने मूवमेंट करना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड में उसने मूवमेंट करना चाहिए, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एक अपोजिशन हमेशा से प्रोवाइड वहां पे रहेगा, ठीक है। बट आप उस अपोजिशन को कम कर सकते हो बाय एडिंग एनी लुब्रिकेशन देयर और मेकिंग द सर्फेसेस मच स्मूथर, है ना। ऐसा करके आप उसको रिड्यूस कर सकते हो उसके फ्रिक्शन। तो ये जब चीजें सब गैलीलियो ने जो बताई, तो उसके ऊपर न्यूटन जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने काफी स्टडी की, और उसके स्टडी के बाद उन्होंने अपने 3 लॉ जो हमारे सामने रखे, जिसमें का सबसे पहला लॉ था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उसे हम अभी आपको समझने वाले हैं। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। इसको हम कैसे समझेंगे? सो फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक बॉल रखी हुई है, मैंने रखी हुई इसको एक सरफेस के ऊपर, ठीक है। आई हैव पुट इट और बॉल ऑन ए सरफेस, और क्या हो गया, इस बॉल के ऊपर मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ बॉल रखी हुई है, और जो सरफेस है वो भी एकदम प्लेन है, कोई इंक्लिनेशन उसमें नहीं है। तो उस केस में आप देखोगे कि जो बॉल है वो अपनी जगह पे वैसे ही स्टेडी रहेगी, वो कहीं पे भी मूवमेंट नहीं करेगी, है ना, सही है। बट अगर मैं इस बॉल को आपकी हॉकी स्टिक से उसको पुश करता हूँ, या फिर अपने किसी चीज, मतलब किसी चीज का यूज करके मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, तो आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन, अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर लेगा, है ना। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब मैंने उसके ऊपर एक अप्लाई किया फोर्स, मीन्स व्हेन आई apply the force on the object, in that case only the object will move, it will change its position of rest। मतलब अभी वो रेस्ट में है तो रेस्ट की पोजीशन चेंज करके मूवमेंट में आ जाएगा, जब मैं उसको बाहर से एक फोर्स अप्लाई करूंगा तभी, है ना। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, जैसे आपने समझ लो एक फुटबॉल है जिसको आपने पैर से किक कर लिया, तो क्या होता है, फुटबॉल आगे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। बट आप देखते हो कि कुछ समय बाद वो जाके कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो वो रुका क्यों, क्योंकि उसको अपोजिशन मिल रहा है, किससे, एयर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो हमारी अर्थ है वो भी उसको रोकने की कोशिश कर रही है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन वहां पे क्रिएट हो रहा है। तो वो जो फ्रिक्शन है वो एक तरह से क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। और जब वो फ्रिक्शन फोर्स, जब वो एयर का रेजिस्टेंट फोर्स आपके अप्लाई किए हुए फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में आप देखोगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा। जैसे हमने फुटबॉल की केस ली है, तो फुटबॉल में जाके वो वहां पे फुटबॉल जो है रुक जाएगा, है ना। तो यहां से मैं क्या समझ सकता हूं, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा,
कब तक? जब तक आप उसको एक अप्लाई फोर्स, मतलब बाहर से आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई जब तक नहीं करोगे तब तक आपको ये केस वैसे ही मिल जाएगा, है ना। तो यही हमारा लॉ है जो न्यूटन ने हमें पढ़ाया उसके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो आई होप आपको जो ये कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका है, ठीक है। इसी चीज को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक और डेफिनेशन हमारे पास में है जिसको बोला जाता है इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पे स्टेडी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बॉल की बताया, तो बॉल जो है एक जगह पे रुकी हुई थी तो वैसे ही रुकी हुई रहेगी। उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी कि मैं रुकी हुई हूँ तो मैं रुकी ही रहूंगी, मैं बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। बट इसको मूवमेंट में आप तभी ला सकते हो जब तक आप उसके ऊपर एक बाहर से फोर्स अप्लाई ना हो, है ना। तो वही चीज है, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहना चाहेगा विद सेम वेलोसिटी। और ये जो टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है इसी को बोला जाता है इनर्शिया। जैसे आप फैन का एग्जांपल ले लो, अगर आपका फैन जो है मोशन में है, आपने क्या कर दिया, सडनली बटन बंद कर दी, तो उसने क्या करना चाहिए था, बंद हो जाना चाहिए था, है ना। इलेक्ट्रिक सप्लाई तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, बट वो सडनली बंद हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है कि वो सेम वेलोसिटी से मूवमेंट करता रहे, तो वो लगातार मूवमेंट करता ही रहेगा कुछ समय के लिए। और क्योंकि वहां पे एक एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होते हुए आप देखोगे कि फैन जो है थोड़ी देर के बाद रुक गया, है ना। तो ये किसके कारण हुआ? ये हुआ बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का खुद का कुछ इनर्शिया था, जिस इनर्शिया ने उसकी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, और जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी देर के बाद में जाके रुका, ना कि बटन बंद करते हुए रुक गया। आया समझ आपको? तो यही चीज है जो हमें इनर्शिया के अंदर समझनी है। अभी इनर्शिया जो है वो मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। अभी इसको कैसे समझेंगे हम लोग? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक छोटा सा स्टोन है और मेरे पास में काफी बड़े साइज का स्टोन है, दो स्टोन मेरे पास में, ठीक है। अभी इस स्टोन का इनर्शिया कुछ अलग होगा, इस स्टोन का इनर्शिया कुछ अलग होगा। अभी इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? देखो, ये जो मेरे पास स्टोन है, समझ लो कि इसका वेट है आपका 1 kg, ठीक है। और ये मेरे पास कोई स्टोन है जिसका वेट है मेरा 20 kg, ठीक है। फर्स्ट वाला जो स्टोन है उसका वेट है सिर्फ 1 kg, सेकंड वाला स्टोन है उसका वेट है 20 kg। अभी क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे ने, मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट अभी स्टेडी में है, मतलब रुका हुआ है, और ये भी ऑब्जेक्ट स्टेडी है। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो स्टेडी है वो क्या चाहेंगे कि अपनी पोजीशन को वैसे ही बरकरार रखें, वो बिल्कुल मोशन में आना नहीं चाहेंगे। अभी क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे ने इस ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये जो छोटा सा स्टोन था उसने मूवमेंट कर लिया, क्योंकि उसका वेट कम है, मास कम है, तो छोटे से बच्चे ने भी उसको मूवमेंट कर दिया तो वो मूवमेंट में आ जाएगा, बराबर। तो इसकी जो टेंडेंसी थी उसकी टेंडेंसी को वो छोटा सा बच्चा ओवरकम कर पाया अपने फोर्स, समझ में आया आपको? बट ये जो मेरा 20 kg का बड़ा सा स्टोन है उसके ऊपर उसी बच्चे ने अगर फोर्स लगाया तो वो स्टोन बिल्कुल मतलब वहां से हिलेगा भी नहीं। अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस स्टोन की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस स्टोन, मींस the inertia of this stone is more as compared to the first stone. And why it is so? It is because of the greater mass of this object. Because the second stone is of 20 kg mass and the first stone is of just 1 kg mass. So because of higher mass of the second stone, we can say that that object has more inertia as compared to the first object. And that is why we can say that the inertia depends on mass, means if a object is more heavier, if its mass is more as compared to another object, then in that case the inertia will also be greater as compared to the first object. Because of its higher mass, inertia will also be the higher. I hope आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ चुका है। इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में हमने क्या समझा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई होता है तो आप क्या बोलोगे, वो एक बैलेंस फोर्स है। मतलब उस केस में आपको ऑब्जेक्ट का कोई भी मोशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड में सेम ही फोर्स है।
बट अगर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो उसको आप बोलोगे अनबैलेंस्ड फोर्स। और उस केस में ऑब्जेक्ट जो है जिस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है उस ऑब्जेक्ट में आपको उस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा 10 न्यूटन फोर्स इज ऑन लेफ्ट साइड एंड 15 न्यूटन फोर्स इज ऑन राइट साइड, सो वी विल सी द ऑब्जेक्ट मूवमेंट ऑन द राइट हैंड साइड if the mass is not greater. Then we have studied that the Galileo have observed some of the motions of an object on an inclined plane, and according to that he deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. तो उन्होंने बोला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूवमेंट करने के लिए छोड़ दो तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से लगातार मूवमेंट करता ही रहेगा, जैसे उन्होंने यहाँ पे देखा। ठीक है, बट इसी चीज पे उन्होंने एक चीज इंपॉर्टेंट ऐड की, व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। पर ये कब तक होगा? जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है, तब तक वो उस तरह से एक सेम स्पीड से मूवमेंट करता रहेगा। तो इसी चीज का एक आप बोल सकते हो बेस लेते हुए न्यूटन ने हमारे सामने अपने 3 लॉज रखे हुए, जिसका एक फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड ऑब्जेक्ट्स रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force। तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा अगर रेस्ट में है तो, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? unless compelled to change that state by an applied force, मतलब बाहर से अप्लाई फोर्स करके उसका चेंज स्टेट हमने नहीं किया, तब तक ऑब्जेक्ट जो है वो उसी अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहता है, और इसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो, है ना। तो इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी होती है, जो टेंडेंसी उसके अंदर आती है बिकॉज ऑफ इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका खुद का एक मास होता है, और उस मास के कारण जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। बट हर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट मासेस। हर एक ऑब्जेक्ट का मास अलग होता है, तो जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया भी ज्यादा, बोल सकते हो। इसको हमने एक सिंपल से एग्जांपल से यहाँ पे समझा भी। तो आई होप आज हमने जितना कंसेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश की है आपको समझ में आ चुका है, और अगर इसके रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।